Hi there. I hope I am audible, visible to all of you. You can confirm on the chat option quickly. Great. So on behalf of Skillspire, I welcome you to this session. I would rather say it is a very interesting session because it is going to be a very hot topic that we are going to discuss. And in last 1.5 years, this topic has been tip of the toes for everyone because we were in a lockdown situation not once but twice, and a lot of businesses were working because of a technology space which was related to the financial services. So welcome to this session, and we are going to discuss a case study or business review of Paytm. Paytm is basically a brand known as Pay Through Money. Pay Through Money. But the company's name is 197 Communications Limited. Hi, my name is Bhavik, and I am a consultant speaker and trainer with Skillspire. I have 15 years of experience in this industry, financial services industry. I started my career into securities business, moved to advisory, and now I have my own practice wherein I impart the education. I share my experience and knowledge with prospects, students, corporates. And over the period of last 15 years, I have trained more than 5,000 people in my journey. So I assure you that this session is going to add some value to your understanding, and I'm sure you will make some notes, you'll do your own research and build on the knowledge that is going to be discussed over here. So with this, let's start with the objective of today's session. But before moving ahead, let me ask you, the language of communication is comfortable in English, or you want me to communicate in Hindi? You can confirm on the chat option. I hope I am audible. Yes, sir, you are audible. Okay. Both are good. Acha, English and Hindi both. Great. Okay, great. Fine. So we'll keep both. All right. So let's start the session. In between, if there is any network connectivity, I may switch off my video because because of video, there may be a network issue or bandwidth issue. So I may switch off my video, but please be focused on the presentation today. All right. So what are we going to discuss today? We are going to discuss majorly 5 points. What are that 5 points? And this is how the topic is going to be built. So first, we are going to discuss the overview of fintech space. So we will discuss the fintech space as a whole. What is fintech? Okay, where is the term derived from? What is the global scenario of fintech space? Okay, what are the initiatives that are being taken at a global level? What is the situation in India about the fintech space, and what are the events that has given the booster to the fintech space in India? And then we are going to discuss about the industry overview of fintech space specifically in India, right? So what are the branches of fintech, and how does it works, and what are the developments that are being taking place, and what are the companies or startups which are already there in the fintech space, okay, and the future of this. So there would be a projection. There is obviously a projection that by 2026, what would be the scenario of this industry. Once we know the global space, once we know the Indian space, then we will come to the introduction of the company, that is Paytm, how it is going to capitalize on this opportunity. Because whenever you discuss about the business, there are 4 things you need to discuss. That is strength, weakness, opportunities, and threats.
So in first two topics, we are going to discuss about the opportunity that is prevalent and what are the threats that may be possibly arise. And then once we discuss about introduction to Paytm, we are going to discuss about the businesses that the Paytm is into, what are the future projections, what are its financials, working of the businesses and its group companies. Because Paytm, as we know, is not only a payment aggregator. There are multiple businesses. So what are the businesses associated, how the journey has started, how it has gradually grown, when it all started, how many years it took to develop, all these things we are going to discuss. And then we will be discussing on the management. Who are the board of directors, who are the leading people in the management who are running this company, and we will give you the glimpse about the financial information of the company, whether the company is profitable, whether the company is making loss, what is the market share, how it works, all these things we are going to discuss. And then finally we will review these points. We will discuss the few points on the takeaways that you may do the further research on. All right, so good to go. Clear on the objectives of the session? Yes, no? All of you can use the chat option to confirm yes. Simply type yes. Okay, so that I can know I am communicated, I am connected with all of you, and you are all able to be listen to whatever I'm trying to say. All right, chaliye. So before moving ahead, I would like to ask you, anybody, that what is a fintech? Anybody? You can give your response and then we can build a topic on that. So what is a fintech space, or what is fintech as a whole? Background of the fintech. Are you able to see my presentation? Okay. All right. So what is a fintech? Somebody said financial technology. Okay, correct. Fintech is so when finance comes into technology field. Acha. So yes, so it is a marriage of finance and technology. Okay, it's a marriage of finance and technology. It's a combination of two words. It is a term that refers to any technology that seeks to enhance and automate the delivery of financial services in newer, faster ways than traditionally available. If you are born before 1990s and if you have happened to visit a bank, especially PSU bank, you must have observed the working of the bank, all paperwork and everything. And those of you who have been born after 1995, and today if you are a major and if you have a bank account, I am sure in your last 3-4 years of existence, you may not have visited the branch of a bank, but you are using all the services of the bank. Am I correct or not? ओके पिछले 1.5 साल में हम घर से बैठ के हमने बहुत सारे ट्रांजैक्शंस, रिन्यूअल्स, रिचार्जेस, सब कुछ हमने with the help of technology किया है, right? So that is what it is. So commencing as a term referring to back-end technology used by large financial institutions. It has expanded to include technological innovations in financial sectors, including innovations in financial literacy and education, retail banking, investments, etc. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. आज SBI, State Bank of India, has the largest network of branches in India. There is no second bank to it. Okay, but do you know that a private bank is growing faster than SBI? A private bank named HDFC Bank is growing faster in terms of profitability, in terms of reach, than State Bank of India. You know why? Because they have not opened the branches across.
but they have kept the ATMs initially. Branches कम रखी, ATMs ज्यादा रखे. और आज with the help of smartphones and smart telephony and UPIs, they are not willing to open the branch. They don't want to incur the cost of a branch, but they give the inputs through the mobile telephony, and that's how the penetration becomes larger, faster, and broader. Okay, so fintech can take a form of a software, a service, or a business that provides technologically advanced ways to make financial processes more efficient by disrupting technological traditional methods. All right, so fintechs में क्या क्या आएगा? There are a lot of financial activities that happens. तो fintech में क्या क्या आएगा? सबसे पहला मनी ट्रांसफर्स. ओके, आजकल कैश ट्रांसफर्स लोग कम करते हैं. ओके, 2016 के बाद तो और ज्यादा कम करते हैं. मनी ट्रांसफर हैपन विद द हेल्प ऑफ मोबाइल एप्स. ओके, whether you use it Paytm or you use Google Pay or Airtel Money, even आजकल Amazon का great Indian sale चल रहा था, Flipkart का चल रहा था. They are also you are making payments by UPI or maybe through money aggregators. Okay, so that is something which is money transfer, and this is a huge business. You know, मैं आपको एक example देता हूँ. वॉलमार्ट एक ऐसी कंपनी है जो सालों से एग्जिस्टेंस में है यूएस में, और उन्होंने टेक्नोलॉजी नहीं, उन्होंने स्टोर्स को एक्सपेंड करने में अपना फोकस किया. बट इंडिया में यू नो दे हैव इन्वेस्टेड इन फ्लिपकार्ट. हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दैट? इन इंडिया दे हैव इन्वेस्टेड इन फ्लिपकार्ट, विच इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. ऐसा बोलते हैं ना कि इफ यू डोंट चेंज you will be extinct. So Walmart also had to change their business strategy, so they invested in Flipkart in India, and India is going to be the biggest consumer market because India में population इतना ज्यादा है. After China we are the second highest population, और ऐसा बोला जाता है कि 2050 तक we will overtake China. So most densely populated country in the world will be India. Okay. Second is depositing a check with your smartphone, bypassing the bank branch to apply for credit. आज आपको लोन लेनी है तो मोबाइल ऐप से आप अप्लाई करोगे, you will get a call and your mobile your loan will be sanctioned. So there is no face to face interaction that is happening. अगर आपको सेविंग्स अकाउंट खोलना है तो भी there is no face to face interaction that is happening. Everything is happening virtually. If you want to raise money for a business startup, then also you need to use fintech space. Okay. Managing your investments. आज आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना है, स्टॉक लेना है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. या तो आपके सेलफोन से, स्मार्टफोन से, या तो आपके लैपटॉप से you can buy. Okay, without any person's assistance. So that's how this fintech space works. Now, this is the overview of a fintech space. Okay, so every mobile transaction happens, every financial transaction happens with a 7-inch screen that you have on your hands. Okay, I'm sure all of you have this 7-inch screen in your hands, right? So as I said, it is a marriage between technology and financial services. There is a space which is developing very fast, and it is known as fintech space. So I've given you an overview of what the fintech space is all about. All right. How did it all started? It all started in the 1990s when internet and e-commerce business models sold. So in US in 1990s, आपने देखा होगा कहीं व्हाट्सएप पे, कहीं सोशल मीडिया में पोस्ट देखा होगा कि जेफ बेजोस अपने गैरेज के ऑफिस में बैठ के एक पुराने वाले डेस्कटॉप कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहा है. सो दैट्स व्हेन द ई-कॉमर्स एंड इंटरनेट ऑल स्टार्टेड. बट ज्यादा बूस्ट कहाँ मिला? ज्यादा बूस्ट मिला 2008 में, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए.
तब लोगों को डाउट हुआ कि देर इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम। उसकी वजह से टेक्नोलॉजी अपना के लोग ट्रांसपेरेंसी पे आने लगे। आज आप देखिए मोदी जी भी हमारे यहाँ बहुत सारे गवर्नमेंटल इनिशिएटिव्स थ्रू टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, तो बीच में से बहुत सारे पैसे बच रहे हैं। मनी इज गेटिंग डायरेक्टली, सब्सिडी का पैसा डायरेक्टली गेटिंग क्रेडिटेड टू द एंड यूजर थ्रू आधार लिंक पेमेंट। इनकम टैक्स पे भी करना है आपको, तो आपको आधार लिंक करना पड़ेगा, जिससे आपका पैसा कहीं बीच में नहीं होके सीधा ट्रेजरी में दिस इज ऑल फिनटेक स्पेस। ओके, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट जो हुआ वो नवंबर 2016 में हुआ। कोई मुझे बता पाएगा नवंबर 2016 में क्या हुआ था? एनीवन? यस, डीमोनेटाइजेशन, करेक्ट। तो डीमोनेटाइजेशन एक्सरसाइज दुनिया में पहली बार हुई है ऐसा नहीं है, इंडिया में ये दूसरी बार हुई है। मोरारजी देसाई के टाइम पे डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उसके बाद ये डीमोनेटाइजेशन हुआ है। ये डीमोनेटाइजेशन होने से क्या हुआ, 500 और 1000 रुपए की करेंसी नोट बंद कर दी, बैन कर दी इंडिया में। एंड उससे क्या हुआ, 86.4% कैश इकोनॉमी से ओवरनाइट गायब हो गया। ओके, गायब हो गया इन द सेंस कहीं छू नहीं हो गया है, बट वो ट्रांजैक्शन ही खत्म हो गया, जिसकी वजह से पब्लिक को बाय कंपल्जन डिजिटल पेमेंट्स एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे शिफ्ट होना पड़ा। एंड दैट इज अ मेजर एडवांटेज टू बैंकिंग एंड फिनटेक स्पेस। और अब देखिए 2016 के बाद बैंकिंग इंडस्ट्री एज अ होल हैज ग्रोन बाय लिप्स एंड बाउंड्स, it has grown by lips and bounds. So that is what the development of this thing does to you. All right, now let's talk about world markets. वर्ल्ड मार्केट्स में ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, इट शोज यू कि फिनटेक मार्केट क्या है। सो पहला तो नॉमिनल जीडीपी दिया गया है, जो पाई चार्ट दिया गया है उसके सेकेंड हाफ, नीचे के हाफ में नॉमिनल जीडीपी दिया गया है ट्रिलियन डॉलर्स में, और फर्स्ट हाफ में नंबर ऑफ फिनटेक कंपनीज दी गई है। जैसे चाइना की बात करें तो चाइना में नॉमिनल जीडीपी जो है वो 14.1% है, 1 ट्रिलियन डॉलर्स है, 14.1 ट्रिलियन डॉलर्स, और वहां पे 2500 फिनटेक कंपनीज हैं। जापान में 5.1 ट्रिलियन डॉलर्स, 250 फिनटेक कंपनीज हैं। साउथ कोरिया 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स एंड 430 कंपनीज हैं। ऑस्ट्रेलिया में 1500 कंपनी है, 1.4 ट्रिलियन। इंडिया में 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स का इकोनॉमी है एंड 2100 फिनटेक कंपनीज हैं। एंड दिस इज एज ऑन 2020 लास्ट ईयर। ओके, सो पूरे वर्ल्ड में देखने जाए तो यूएस, उसके बाद यूके, उसके बाद चाइना एंड फोर्थ पे इंडिया है। सो इंडिया का मार्केट जो है उसकी इकोनॉमी की कंपैरिजन में जो फिनटेक कंपनीज है दैट इज far huge. Okay, so India is one of the largest fintech markets in the world, जैसे मैंने आपको आगे बताया, population wise as well as penetration wise. Clear? So compared to GDP, right, the number of fintech companies are 2100. Clear? Yes, no, anybody, any doubt, questions, queries? You can ask on the chat option if you wish to. Or if it is clear, you can say all clear. Great. All right, great. So ये वर्ल्ड का चार्ट देख के एक चीज पता चलती है कि इंडिया का जो पोटेंशियल है दैट इज ह्यूज। इंडिया इज अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग फिनटेक मार्केट इन द वर्ल्ड। ओके, इंडिया हैज एशियाज हाईएस्ट फिनटेक इन्वेस्टमेंट्स। जो वीसी पकड़ लो दैट इज वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, M&A दैट इज मर्जर एंड एक्विजिशन डील्स। कितने रुपए की डील हुई है पता है? $647.5 मिलियन का डील हुआ है अक्रॉस 33 डील्स।
और उसकी कंपैरिजन में चाइना में कितनी डील हुई है? 284.9 मिलियन। सो चाइना में जो डील हुई है उसकी कंपैरिजन में इंडिया में 3 times हायर डील हुई है इन अ फिनटेक स्पेस एज ऑन June 30, 2020. Okay. Existing fintech companies has gained 1/3 of new revenue at a cost of traditional banks. India, along with China, accounted for the highest adaptation of 87%. जहां पे ग्लोबली 64% है, वहां पे इंडिया और चाइना में 84% एडप्टेशन रेट है. ओके, so India has seen explosive growth in the number of new ventures launched in fintech space. 2010 से 2015 में 1216 फिनटेक कंपनीज नई फाउंड हुई है और इनका बिजनेसेस क्या है? पेमेंट्स, लेंडिंग, वेल्थ एंड अदर्स. ओके, क्लियर. और उसको गवर्नमेंट ने कैसे सपोर्ट किया है? विद द आधार फॉर फॉर्मलाइजेशन, गेटिंग एवरीवन अ बैंक अकाउंट. जो प्रधानमंत्री जन जन योजना था उसको जैम बोलते थे, जैम. ओके, जनधन अकाउंट्स, आधार लिंक एंड मोनेटाइजेशन. ओके, IMPS, UPI, इसको मोनेटाइजेशन. So this 3 things has given a booster to all this companies. And leading companies कहाँ है? वेल्थ, इंश्योरेंस एंड लेंडिंग. इन सब में ज्यादा पेनिट्रेशन. क्लियर. आगे बढ़ते हैं. सो इवोल्यूशन, इंडिया में इवोल्यूशन कैसे हुआ? सो 2010 में कहां थे हम और 2021 में कहां है? सो 2010 में क्या हुआ? स्मार्टफोन्स जो थे, स्मार्टफोन्स में 50% ग्रोथ दिखा इन 2010. अगर आपको पता हो तो 2010 में ब्लैकबेरी के फोन्स यूज होते थे. फेसबुक जस्ट इंडिया में आया था, व्हाट्सएप का तो जन्म ही नहीं हुआ था. ओके, और 50% स्मार्टफोन का ग्रोथ हुआ था सेल्स में. And it became the largest market, fastest growing market in the world. Okay, and 2010 में ही वॉलेट्स लॉन्च हुए थे. ओके, मोबाइल वॉलेट्स. तो ग्रेजुअली वो हुआ. उसके बाद 2014 में वो चीजें बढ़ती गई और हम लोग यूज टू होने लगे फॉर मोबाइल डिजिटल पेमेंट्स. ओके, पेटीएम का जन्म भी 2010 में हुआ था. हालांकि कंपनी 2010 में नहीं बनी है और उसका जन्म भी 2010 में बना था, बट इट वाज नॉट वेरी प्रोमिनेंट. ऑलराइट, सो दे टुक दिस टाइम टू पेनिट्रेट अक्रॉस द मार्केट्स. 2016 में क्या हुआ? डीमोनेटाइजेशन. सो 2010 में पेटीएम का जन्म हुआ, पर 2010 से 2016 में इट वाज ब्लीडिंग लाइक एनीथिंग. ओके, कई बार ऐसा होता है बिजनेस आइडिया अच्छा होता है पर मार्केट सपोर्ट न करे तो वो बिजनेस आइडिया फेल हो जाता है. 2016 आते आते उतना कैश बर्न कर दिया था पेटीएम ने कि फाइनेंसेस जो थे उसके थोड़े डिस्टर्ब हो गए थे. बट 2016 एज द लक हैड, डिमोनेटाइजेशन आया, नया जो गवर्नमेंट आया उसने डिजिटाइजेशन पे फोकस किया, यूपीआई लॉन्च किया. So smartphones apparently became the smartest device for banking at a reduced cost of transactions. Okay, और data cost जो है इंडिया में lowest है. Recently I came across one chart, मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, पर UAE में 1 GB का $7.4 का कॉस्ट है. UAE में. इंडिया में 1 GB का कॉस्ट है 70 पैसा टुडे. 70 paisa is the cost of 1 GB data in India, and in China it is 30 paisa. 30 paisa. Imagine. So reduced cost of data. आज आप कॉल भी करते हो तो आप नॉर्मल कॉल नहीं करते हो, आप व्हाट्सएप कॉल करते हो, वीडियो कॉल करते हो, बिकॉज द डेटा कॉस्ट इज लो. अग्रीड और नॉट? yes or no? So with the help of this 2 things, in fact 3 things, smartphones, launch of UPI and reduced data cost, it create a best pedigree for companies like Paytm to grow. और उसमें भी फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो होता है, जैसे Paytm had an फर्स्ट मूवर एडवांटेज. उसके बाद बहुत सारी कंपनी आई, आपने नाम सुना होगा, फ्री चार्ज आई और भी बहुत सारी कंपनीज आई, उसके नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, बट
फर्स्ट मूवर एडवांटेज पेटीएम को मिला। आप समझ रहे हो? यस, मोबीक्विक वाज देयर, तो पेटीएम गॉट एन फर्स्ट मूवर एडवांटेज। वो गुजराती में बोलते हैं ना, वहेला ते पहला कि पहला ते वहेला, व्हाटएवर, क्या बोलते हैं, वहेला ते पहला, राइट? सो पेटीएम को वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलने लगा। 2017 में क्यूआर कोड का इंट्रोडक्शन हुआ, सो डिस्कवरी ऑफ क्यूआर कोड। ओके, सो क्यूआर कोड एंट्री हुई, और क्यूआर कोड की एंट्री जो थी वो उसकी रीडेबिलिटी में पहले प्रॉब्लम हुआ करता था, फिर उसकी रीडेबिलिटी 2017 के एंड तक आते आते 10 टाइम्स बेटर हो गई और बार कोड को वो रिप्लेस करने लगा। सो बार कोड से भी आप कर सकते हो। आप अगर सुपरमार्केट में जाते हो तो वहां बार कोड स्कैनिंग होता है, राइट? पहले सुपरमार्केट, मैंने अपने कॉलेज डेज में सुपरमार्केट में काम किया है, तब जो कोड आते थे 6 डिजिट के कोड हमें टाइप करने पड़ते थे, तो जिसका फिंगर्स का स्पीड ज्यादा है वो कर सकता था। पर आज आप जाओगे तो देखोगे तो कोई भी आइटम पे बारकोड होता है, क्विकली स्कैन हो जाता है, राइट? So now that QR code has been replaced. So players like Paytm and others support it, making it ubiquitous. Okay. So again QR code में भी Paytm को क्या हुआ, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलने लगा। फिर 2018, 19, 20, 21 में क्या हुआ, ऑनगोइंग एवेल्युएशन चलते रहा। गवर्नमेंट ने फास्टैग लॉन्च किया, तो फास्टैग को भी रिन्यू करना पड़ता है। फास्टैग में भी डिजिटल पेमेंट, अगेन फिनटेक हैज टेकन द प्लेस इन फास्टैग। फास्टैग से क्या हुआ, अक्रॉस इंडिया जो भी हाईवेज पे आप जाते हो वहां पे टोल जो है वो टोल ऑटोमेटिक स्कैन से गवर्नमेंट की ट्रेजरी में डेबिट हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। सो उससे क्या हुआ कि फास्टैग कंपलसरी करने से एवरीबडी हैज टू यूज अ फास्टैग, अदरवाइज द टोल अमाउंट हैज गॉन डबल। अगर आपको अहमदाबाद से बड़ौदा जाना है तो फास्टैग से 100 रुपए का अगर टोल लगता है, अगर फास्टैग नहीं है तो 200 रुपए का टोल लगता है। सो बाय कंपल्जन यू हैव टू यूज फास्टैग, और फास्टैग को रिचार्ज करने के लिए यू हैव टू यूज दिस अगेन पेमेंट बैंक्स एंड एवरीथिंग। और कोविड-19 आया, कोविड-19 मतलब 2020 मार्च से पूरा लॉकडाउन आ गया, उसकी वजह से इंश्योरेंस बिजनेस जो था वो बहुत ही ग्रो कर चुका। ओके, इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस टू द की प्लेयर्स। ओके, सो ज्यादा जो प्लेयर्स थे, जैसे पेटीएम ने भी इंश्योरेंस में पेनेट्रेट किया, बहुत सारी कंपनीज ने, एग्रीगेटर्स ने इंश्योरेंस ऑफर करना शुरू कर दिया, जैसे डिजिट है, डिजिट इंश्योरेंस, विराट कोहली की एड आती है। सो ई हेल्थ इंश्योरेंस के साथ टाई अप करने लगे। इनोवेटिव डिवाइसेस लाइक साउंड बॉक्स, अगर आप कहीं पे से वड़ा पाव खाने जाते हो, वड़ा पाव वाले के यहाँ एक बॉक्स होता है, उसमें क्यूआर कोड होता है, उसको आप स्कैन करके पे करते हो तो वो बोलता है कि so and so rupees has been credited to your account. That is nothing but a sound box. ओके, स्टिकर्स लगने लगे। आज लगभग आप पेट्रोल भरवाते हो तो आप पेट्रोल का पेमेंट कहां से करते हो, आइदर बाय यूपीआई और बाय पेटीएम स्कैनिंग। उसकी वजह से आपको कैशबैक मिलता है, राइट? कैशबैक डायरेक्ट क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट, ऑलराइट? और ओटीपी नहीं देना पड़ता है। नॉर्मली कार्ड स्वाइप करते हो, डेबिट कार्ड है तो उसमें ओटीपी टाइप करना पड़ता है, ये क्यूआर कोड स्कैनिंग में ओटीपी टाइप नहीं करना पड़ता है। एंड यू कैन लिंक योर यूपीआई विद द पेमेंट एग्रीगेटर, जैसे पेटीएम में आप अपना यूपीआई कर सकते हो। और तो और आईआरसीटीसी का को टिकट बुक करना है तो भी वहां पे पेटीएम से ही पेमेंट करना पड़ता है। देयर इज अ प्लेटफॉर्म, राइट? अग्रीड और नॉट? So this is how the evolution of fintech space has happened in India. Clear? Any doubts, anyone? किसी को कोई सवाल, कोई questions? Anyone? All right. So I hope things are going great. Now, what is the industry overview? अभी यहां तक तो जो हुआ वो हमने देखा कि ये हुआ है, but what is the future or what is the current situation? यहाँ पे कहाँ खड़े हैं हम? Where are we standing and where are we going to move ahead in the future? So उसके लिए आपको इंडस्ट्री जानना जरूरी है। So इंडस्ट्री में
सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि हम कहां खड़े हैं. सो इंडिया हैज अराउंड 2174 फिनटेक स्टार्टअप्स एज ऑन जून 2020. ओके, टेक्निकली स्किल्ड वर्कफोर्स अवेलेबल है, present in most of the part of the financial services and technologically ecosystem, with makes Bangalore and Mumbai the top 2 headquarters. Okay, तो सबसे ज्यादा ये जो स्टार्टअप्स लॉन्च हुए हैं वो मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, उसके आजू बाजू हुए हैं. उसमें आप ब्रेकअप देख सकते हो कहां कहां प्रेजेंस है. तो सबसे ज्यादा आप देखोगे 747 जो है, 747 is into other segments. Second highest 405 जो है that is into payments. जैसे हमने पेटीएम, मोबीक्विक, फ्री चार्ज ये सब की बात की, they are into payments. 365 startups are into lending, loans, lending. 313 are into wealth tech. स्मॉल केसेस करके एक कंपनी है, अगर आपने नाम सुना हो, स्मॉल केसेस, that is into wealth tech. Okay, then 173 are into personal finance space, personal financial management, जहां पे आपको अपना एक्सपेंस मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड्स, ये वो फलाना ढिमकाना वो सब ऑफर्स करते हैं. then there are 111 into insurance tech. okay, हेल्थीफाई करके एक ऐप है, बहुत सारी ऐसी ऐप है जो आपको इंश्योरेंस टेक रिलेटेड है. Okay, 58 is into cyber security and regular tech, and majority is into various segments. तो 5.4 बिलियन का फिनटेक का फंडिंग मिला है 2019 और 2020 के फर्स्ट हाफ में. ओके, सो एआई, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, डेटा एनालिटिक्स, रोबो प्रोसेस ऑटोमेशन, ये सब के कोर्सेज अगर आप फेसबुक भी स्कैन करेंगे ना तो आपको ये सब के कोर्सेज देखने मिलेंगे. ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, नाम सुना है ना ये सब चीजें आपने? यस, नो? राइट, सो दैट्स व्हाट इज इनटू. नाउ ये देखिए, दिस इज हाउ द फिनटेक स्पेस वर्क्स. ओके, फिनटेक के 5 लीडिंग सेगमेंट्स हैं: लेंडिंग, वेल्थ टेक, इंश्योरेंस टेक, पेमेंट्स एंड रेगुलर टेक्नोलॉजी. ओके, सो क्या है? सबसे पहले लेंडिंग. तो लेंडिंग में कौन कौन से हैं? डिजिटल लेंडर्स एंड इंटरमीडियरीज. ओके, डिजिटल लेंडर्स जैसे बैंक बाजार. ओके, बैंक बाजार क्या करता है? तो उसमें भी बहुत सारे हैं: पर्सनल एंड अदर लोन्स, P2P लेंडिंग, पीयर टू पीयर लेंडिंग, पेडे लोन्स, POS क्रेडिट्स, SME फाइनेंसिंग, एग्रीगेटर्स. सो बैंक बाजार है, माई लोन केयर, लेंडिंग कार्ड, फ्लेक्सी लोन्स, इनक्रेड, फेयरसेंट. कुछ कुछ के नाम आपने सुने होंगे, कुछ कुछ के नहीं सुने होंगे. इंस्टा पैसा. सो दिस आर द स्टार्टअप्स इनटू लेंडिंग स्पेस. ओके, देन वेल्थ टेक. तो वेल्थ टेक में कौन कौन से स्टार्टअप्स हैं? सो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स, रोबो एडवाइजर्स, थीमेटिक इन्वेस्टिंग एंड डिस्काउंट ब्रोकर्स. तो कुछ नाम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं: 5paisa.com, स्मॉल केसेस, ET मनी, स्क्रिपबॉक्स, स्क्रीनर, ट्रेंडलाइन, जेरोदा, सेमको, ये सब नाम है जहां पे ये काम कर रहे हैं. इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स में 5paisa, स्मॉल केसेस आते हैं. रोबो एडवाइजर्स में कुबेरा आता है, मार्केट मोजो आता है. थीमेटिक इन्वेस्टिंग में स्क्रीनर आता है, ट्रेंडलाइन आता है, ट्रेंडलाइन, TRENDLYNE, ट्रेंडलाइन. तो ये सब आ गए आपके फिनटेक स्पेस में. आई एम पुटिंग माय कैमरा ऑन ऑफ. Okay, I hope my voice is clear to all of you. Okay, so मैं कैमरा ऑफ किया हुआ है. Okay, then comes insurance tech. तो डिजिटल इंश्योरेंस है, डिजिटल इंश्योरेंस
एडवाइजर्स। सो बहुत सारे प्लेयर्स वहां पे भी है। आपने ये देखा होगा एक्नो, एको, पॉलिसी बाजार, डिजिट, टल्टरमिंट, ये सब डिजिटल इंश्योरेंस में है। ओके, एंड फाइनली पेमेंट्स, जो हमारा मेन कोर एरिया है आज का डिस्कशन का, पेमेंट्स। तो वहां पे कौन कौन है? तो देर आर मल्टीपल कंपनीज, राइट? मोबाइल वॉलेट्स में पेटीएम इज अ लीडिंग प्लेयर, मोबीक्विक, फ्री चार्ज। देन पेमेंट गेटवेज हैं, जैसे आप कहीं ट्रांजैक्शन करते हो तो बीच में देयर इज अ गेटवे, पे यू मनी, रेजर पे, सीसी एवेन्यू, राइट? पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइडर, भारत पे, फोन पे, जी पे, राइट? अभी व्हाट्सएप पे भी आया हुआ है। So Jio has made a tie-up with Facebook, and that is going to be a threat, that is competitor to Paytm. So आजकल Jio अगर Facebook के साथ tie-up करके मर्चेंट्स के साथ टाइप कर देगा तो दैट विल क्रिएट अ थ्रेट। अभी तक तो क्या है कि पेटीएम की डोमिनेंट पोजीशन है मर्चेंट्स में, राइट? 10 में से 6 जगह 8 जगह पे आपको पेटीएम मिलेगा, पर जियो के आने के बाद जियो पे या व्हाट्सएप पे आएगा, अभी अमेजोन पे भी आ गया है, राइट? और फिर पेमेंट बैंक्स आ गई है, उसमें भी पेटीएम है। सो पेटीएम पेमेंट बैंक्स, एयरटेल पेमेंट बैंक्स। पेमेंट बैंक इज नॉट अ रेगुलर बैंक, ओके, इट्स एन बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंक। सो बहुत सारी चीजें हैं जो पेनेट्रेट हो रही है। एंड रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी, उसमें खाता बुक, क्लियर टैक्स, टैक्स भरना है तो क्लियर टैक्स, खाता बुक। सो दिस इज द होल फिनटेक स्पेस, ऑलराइट? बहुत ही बड़ा पोटेंशियल है, बहुत ही बड़ा एवेन्यू है, और इसको ध्यान में रख के आई विल शो यू वन न्यूज आर्टिकल। ओके, जस्ट अ सेकेंड। I'll show you one news article जहां पे IIFL Finance Limited, IIFL Securities, IIFL Wealth basically has launched a fund dedicated to fintech space. उन्होंने एक फंड लॉन्च किया है जो इसी एरिया में इन्वेस्ट करेगा। ओके, सो बहुत सारे रेगुलेटरी इनिशिएटिव्स भी हुए हैं जहां पे यूपीआई, जनधन, स्टार्टअप इंडिया, लाइसेंस टू पेमेंट बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, बहुत सारी चीजें is working in this favor. All right, so this is an industry overview of what is the scenario of fintech space in India. What is going to be the future of fintech sector? Okay, तो 2019 में जो 1920 करोड़ का, 1920 बिलियन का जो साइज था, वो 2025 में 6,207 बिलियन रुपीस का होगा। तो इसका मतलब ग्रोथ कितना हुआ? 22% CAGR से इस इंडस्ट्री का ग्रोथ हो रहा है। आप समझ पा रहे हो? एवरेज ग्रोथ इज 22% CAGR, और इसको ही कैपिटलाइज करने के लिए दे हैव लॉन्च्ड द space. Let me show you. So let me show you an article जहां पे it is showing you that potential कहां यूटिलाइज हो रहा है। ये देखिए, read this article. I'm sure this is visible to all of you. Yes, no? CAGR is nothing but compounded annual growth rate. Annual growth rate, जिस रेट से ग्रो होने वाला है इंडस्ट्री, उसको CAGR बोलते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ओके, सो दिस इज व्हाट दे सी द पोटेंशियल। ओके, क्लियर ऑन दिस? चलिए, सो हमने पास्ट देखा, हमने ग्लोबल सिनारियो देखा, हमने भविष्य देखा कि भविष्य क्या होने वाला है। नाउ इंडस्ट्री का तो हमने सिनारियो देख लिया। अभी इस इंडस्ट्री में
ग्रोथ है या नहीं है, व्हाट इज द साइज ऑफ दिस इंडस्ट्री, हाउ इज इट गोइंग टू ग्रो, ये सब चीजें हमने देख ली. नाउ हाउ टू कैपिटलाइज ऑन दैट, तो उसके लिए वी आर गोइंग टू डिस्कस अ पर्टिकुलर कंपनी. ओके, कौन है कंपनी, उसका नाम है पेटीएम. ओके, पेटीएम. पेटीएम मीन्स what is the full form of Paytm? Pay through money. ओके, सो कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं, व्हाट द कंपनी इज. और मैं यहाँ पे आपको कुछ पॉइंटर्स दूंगा और बाकी की रिसर्च आप कर सकते हो. पॉइंटर्स क्या है, सबसे पहला तो मैं आपको ओवरव्यू बताता हूं कि कंपनी क्या करती है. ओके, कंपनी के बिजनेसेस क्या है, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द वैल्यूएशंस, investors, financials and management. All right, clear on this? So Paytm was actually launched in the year 2010. Okay, पर वो कंपनी जो है 197 communication was launched in the year 2000. 2000 की साल में लॉन्च हुई थी, तो उसको 10 साल लगे, बट 2010 में Paytm was launched. तो सबसे पहला Paytm का काम क्या था, Paytm का काम था मोबाइल पेमेंट्स. ओके, मोबाइल पेमेंट्स. पेमेंट्स कहां कहां होते थे, मोबाइल रिचार्ज में, बिल पेमेंट्स में, ट्रैवल बुकिंग में, होटल एंड टिकटिंग में, बुकिंग सिलेंडर्स, गोल्ड परचेज, डोनेशंस, इस सब में काम होता है अभी. ओके, रिसेंटली उन्होंने बैंकिंग में भी पेनिट्रेट किया है. सो इट ऑफर्स बैंकिंग सर्विसेज, क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स and investments like insurance, mutual fund and more. अगर आपको शॉपिंग करना है तो उसके लिए ऑनलाइन शॉपिंग भी है, पेटीएम मॉल है, जैसे अमेजोन है वैसे पेटीएम मॉल है, फॉर क्लोथ्स, मोबाइल्स, ग्रोसरी, एसेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज एंड मोर. ओके, सो बिजनेसेस क्या है, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम जस्ट रीडिंग द लोगो. ओके, उसका बिजनेस का स्टेटमेंट जो है वो मैं पढ़ रहा हूं, प्लीज लिसन टू इट. वी ऑफर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अक्रॉस पेमेंट सर्विसेज, कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. Our products and services are carefully developed to address large market and in areas where consumers and merchants are underserved. आप देखोगे पेटीएम कहाँ मिलता है, किराना स्टोर पे, आपके सब्जी वाले के यहाँ पे, ये सब जगह पे. सो दे आर मर्चेंट्स. तो उनका कहना क्या है, सबसे पहला उनका बिजनेस जो है दैट इज पेमेंट्स. सबसे पहला उनका बिजनेस जो है दैट इज तो ये देखिए उनका ओवरव्यू है. क्या ओवरव्यू है, तो सबसे पहला फ्रॉम ऑपरेशंस. ओके, उतनी इनकी सेल्स आ रही है, उनकी रेवेन्यू आ रही है. 4 ट्रिलियन इज द टोटल ग्रॉस मर्चेंट वैल्यू. ओके, जीएमवी, ग्रॉस मर्चेंट वैल्यू. ओके, 4 ट्रिलियन रुपीस का उनका ग्रॉस मर्चेंट वैल्यू है. 7.4 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं टोटल एक साल में. 7.4 बिलियन. ओके, 7.4 बिलियन मतलब 740, 7400 करोड़. 7400 करोड़. बिलियन मतलब 100 करोड़. ओके, 333 मिलियन आर द टोटल यूजर्स. लगभग 33 करोड़ उनके यूजर्स हैं. 33 करोड़ उनके यूजर्स हैं, किसके, पेटीएम के. 114 मिलियन इज द एनुअल ट्रांजैक्टिंग यूजर्स. ओके, सो 11 करोड़ लोग पेटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं हर साल, 11.5 करोड़ लोग. ओके, 2 करोड़ 10 लाख मर्चेंट्स हैं उनके, मतलब जो पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, मर्चेंट्स. ओके, 8 लाख पेमेंट डिवाइसेस हैं, जो आपके साउंड है या जो स्कैन का डिवाइस होता है, वो सब 8 लाख डिवाइसेस उन्होंने दिए हुए हैं. 142 बिलियन उनका कॉमर्स का ग्रॉस मर्चेंट वैल्यू है. कॉमर्स मतलब जो
टिकटिंग का बिजनेस है या जो बुकिंग का बिजनेस है या जो मॉल का बिजनेस है, दैट इज कॉमर्स. ओके, कॉमर्स एंड क्लाउड. उसका ग्रॉस मर्चेंट वैल्यू इज 142 बिलियन. 64 मिलियन टोटल पेमेंट बैंक अकाउंट्स. ओके, पेमेंट बैंक अकाउंट उनके 64 मिलियन है. 52 बिलियन इज द टोटल डिपॉजिट्स. 5200 crore is the total deposits with them. 3 million is the number of loans disbursed. 30 लाख लोन डिसबर्स किए हुए उन्होंने. और 52 बिलियन इज द AUM इन वेल्थ. वेल्थ मतलब म्यूचुअल फंड और ये सब. Alright, so this is the overview of its businesses. Alright, so payment में क्या होता है, उसका 4.4033 बिलियन फाइनेंशियल ईयर 2021 में ग्रॉस मर्चेंट वैल्यू हुआ है. So it is the largest payment platform in India. सबसे बड़ा पेमेंट प्लेटफॉर्म है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. और उसका मार्केट शेयर जो है इट इज अप्रोक्सीमेटली 40%. एंड वैलिड पेमेंट ट्रांजैक्शन में उसका मार्केट शेयर 70% है इंडिया में. ओके, 70% इज द मार्केट शेयर ऑफ पेटीएम इन इंडिया. सो उन्होंने 2015 में क्यूआर लॉन्च कर दिया था एंड 2020 में जनवरी में ऑल इन वन क्यूआर लॉन्च किया है उन्होंने. ओके, क्यूआर ऑल इन वन. और वो थर्ड पार्टी भी पेमेंट यूपीआई के थ्रू करवाते हैं. ओके, पेटीएम वॉलेट, फूड वॉलेट, बैंक, उसमें सेविंग्स एंड करंट अकाउंट, फास्टैग, कार्ड्स, लिंक्ड बैंक अकाउंट्स, पोस्टपेड, ईएमआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वेल्थ, सेव्ड कार्ड, मर्चेंट वाउचर, ये सब मिला के उनका ओवरऑल स्मार्ट ऐप है. ओके, मर्चेंट को एक्वायर करने के लिए वो लोग क्या देते हैं? तो मर्चेंट को एक्वायर करने के लिए वो लोग पेमेंट गेटवे देते हैं, नंबर 1. ऑल इन वन क्यूआर कोड देते हैं, साउंड बॉक्स देते हैं, ऑल इन वन पीओएस देते हैं एंड स्मार्ट पीओएस देते हैं. ओके, इससे वो मर्चेंट एक्वायर करते हैं एक बाजू से, और एक बाजू से वो कस्टमर एक्वायर करते हैं. ऑलराइट, सो बिल पेमेंट में भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं. आपके ब्रॉडबैंड का बिल पे करना है, आपको सिलेंडर का बिल पे करना है, मोबाइल, प्रीपेड, पोस्टपेड, डीटीएच, इलेक्ट्रिसिटी, और सब में आपको कैशबैक देते हैं. एक बार आप प्लेटफॉर्म पे आ गए, कैशबैक की लालच में आप प्लेटफॉर्म पे आ गए, देन यू गेट यूज्ड टू इट. ओके, यू कैन ऐड मनी फ्रॉम योर बैंक, यू कैन ऐड मनी एंड यू कैन मेक ट्रांसफर. अगर आप ओला उबर बुक करते हो तो आप ज्यादातर पेमेंट पेटीएम के लिंक थ्रू करते हो, राइट? पेटीएम वॉलेट के थ्रू करते हो. ओके, यस और नो? कॉन्टैक्टलेस पेमेंट है. तो ये कोरोना सिचुएशन ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को प्रमोट किया. आज आपको अमेजोन का बंदा कोई डिलीवरी देने आता है तो आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करते हो, क्यूआर कोड स्कैन करते हो. अगर आपके मेड को कहीं पे पेमेंट करना है तो आप ऑनलाइन पे करते हो, मनी ट्रांसफर करते हो टू योर कॉन्टैक्ट्स थ्रू चैट्स. सो दिस इज ऑल पेमेंट सर्विसेज दैट दे, so that was their main core business. Then they diversified into commerce and cloud services. ये देखिए, this is how the business strategy works. So more customers कहाँ लाते हैं? Paytm payment instruments and all major payment instruments. उसमें से वो क्या करते हैं? यूजर एंड मर्चेंट एक्विजिशन करते हैं. ज्यादा मर्चेंट और ज्यादा यूजर्स, मोर यूज केसेस, अगेन दे रिफर, अगेन मोर कस्टमर. So that's how the spiraling effect keeps on happening. अभी कस्टमर का एक्विजिशन एक बाजू से हो रहा है और एक बाजू मर्चेंट का एक्विजिशन हो रहा है. एंड डीमोनेटाइजेशन और कोविड केसेस ने ये दोनों को एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल से उन्होंने एक्विजिशन बढ़ा दिया. अभी एक बार आपके प्लेटफॉर्म पे आ तो गए, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? उनका स्टिकीनेस तो रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका पैसा अगर पेटीएम में पड़ा है तो दैट इज जनरेटिंग एन इंटरेस्ट फॉर पेटीएम. ऑलराइट, तो आपका स्टिकीनेस कैसे बढ़ाएंगे? सो दे विल ऑफर द कॉमर्स सर्विसेज. ओके, क्लाउड सर्विसेज. तो क्या होता है? लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन फॉर कस्टमर्स टू अवेल लाइफस्टाइल कॉमर्स सर्विसेज लाइक
टिकटिंग, अगर आपको फ्लाइट टिकट बुक टिक करनी है तो उसमें कुछ डिस्काउंट्स देते हैं, कुछ कैशबैक्स ऑफर देते हैं जिससे आपका स्टिकीनेस बढ़ाते हैं वो। ट्रैवल, बस टिकट बुक करनी है, कहीं सामने पेमेंट करना है कोई रिजॉर्ट में, होटल में, तो उसका वो बुकिंग करते हैं। एंटरटेनमेंट, अगर आपको मूवी टिकट्स बुक करनी है 1 पर 1 फ्री या दिस मच कैशबैक, सो दिस आर ऑल गेमिंग। फूड डिलीवरी, ओके, फूड डिलीवरी अगर आप ऑर्डर करते हो जोमेटो या स्विगी से, पेमेंट कहां से होता है? पेटीएम से होता है, ओके। तो ये सब चीजों से आपको वो कनेक्ट करते हैं, सो दे आर पेनिट्रेटिंग डीपर इनटू योर पॉकेट, और वो एक्सेस इतना इजी कर देता है कि 5 साल का बच्चा भी उसको यूज कर सके, ओके। पढ़ा लिखा या अनपढ़ बंदा भी रूरल एरिया में उसको यूज कर सके, उतना इजी कर दिया है उन्होंने, ओके। सो ट्रैवल ऑप्शंस आर देयर, बुक मूवीज टिकट्स, कोई प्ले, ओटीटी, कहीं पे भी पे करना है आप उधर से कर सकते हो। बुकिंग इवेंट्स मेड सिंपलर, इजी एक्सेस टू वेराइटी ऑफ कंटेंट यूजर्स, और मिनी एप्स को आप होस्ट कर सकते हो आप पेमेंट में, ऑलराइट। सो ये कॉमर्स का जो ग्रॉस मर्चेंट वैल्यू है जो मैंने आगे बताया 142 बिलियन का है एज ऑन 2020, और उसमें से 11 बिलियन के रेवेन्यूज आए हैं उनको, ओके। फाइनली इसके बाद क्या होता है उससे? तो मोर लाइफस्टाइल यूज केसेस, बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस, स्टिकीनेस, अगेन दे विल यूज पेटीएम ऐप अगेन एंड अगेन। सो ये सेकंड रोटेशन, ये फर्स्ट रोटेशन हो गया, मोर कस्टमर्स एंड मोर मर्चेंट, देन उससे स्टिकीनेस बढ़ा कि भाई मैं लाइफस्टाइल खर्चा करूंगा, सो ये खर्चे वाला व्हील है यहाँ पे। दे मोटिवेट यू टू मेक खर्चा एंड चर्चा, खर्चा करो, चर्चा करो, जिसकी वजह से और लोग उनके साथ जुड़ सके। सो ये व्हील चल रहा है, उसके साथ ये व्हील चल रहा है। एंड नाउ खर्चा चर्चा हो गई, उसके बाद जो पैसा बचा उसको इन्वेस्ट करो। तो नाउ दे हैव मोनेटाइजेशन और फाइनेंशियल सर्विसेज एज अ बिजनेस। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या करते हैं वो लोग? तो फाइनेंशियल सर्विसेज में मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज देते हैं, ओके। पेटीएम पेमेंट बैंक, ओके, उसके थ्रू वो फाइनेंशियल सर्विसेज पे करते हैं। सो यहाँ पे मेन कोर इज टू डिस्ट्रीब्यूट द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, distribute and develop the financial products that can be the source of payments, okay. So क्या होगा? इंश्योरेंस होगा, म्यूचुअल फंड होगा, लेंडिंग होगा, और बैंकिंग का यूपीआई आपके साथ कनेक्ट कर देंगे। सो आपका बैंक अकाउंट आपका यहाँ लिंक हो जाएगा, एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो ये उनके फाइनेंशियल सर्विसेज हो गए। अगर आपके पास एक्सेस पैसा पड़ा है और आपको लगता है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो यू कैन पार्क इट इन म्यूचुअल फंड, यू कैन बाय इंश्योरेंस थ्रू पेटीएम। सो देयर इज पेटीएम मनी, पेटीएम मनी करके है, वहां पे आप म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हो, इंश्योरेंस बाय कर सकते हो, लोन्स ले सकते हो, है कि नहीं? सो दिस इज हाउ योर payment services as well as kharcha charcha, that is commerce and cloud services, which increases the stickiness and monetization, and then comes financial services जहां पे ज्यादा एंगेजमेंट एंड ज्यादा स्टिकीनेस होता है, और नए नए फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट्स आपको ऑफर किए जाते हैं जहां पे यू कैन इन्वेस्ट, वेदर इट इज म्यूचुअल फंड, वेदर इट इज इंश्योरेंस, वेदर इट इज एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ओके। क्लियर ऑन दिस? यहां तक किसी को कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? anyone? So I'll pause for 2 minutes. If you have any questions, you can post it on chat option.
Any questions? So there is one question, what is included in cloud services apart from e-commerce? So it is having gaming. So gaming, entertainment, ये सब cloud services में आते हैं. To install Paytm scanner in Kirana store, is company charge any amount from the shopkeeper? I am not sure exactly whether they charge it or not, but जहां तक मुझे पता है they don't charge anything. तो जो भी पैसा उनके अकाउंट में हम क्रेडिट करते हैं, जब वो पेटीएम के प्लेटफॉर्म से अपने बैंक में ट्रांसफर करते हैं, तो देन दे चार्ज अ पर्टिकुलर कमीशन. ओके, दैट इज द अर्निंग फ्रॉम पेटीएम. सो उन्होंने फ्री में सब जगह बांट दिए हैं ये स्कैनर्स और साउंड क्लाउड और ये सब, जिसकी वजह से छोटी छोटी जगह पर भी उनका पेनिट्रेशन है. अभी टेक्नोलॉजी में तो देयर इज नो लिमिटेशन, आप कहीं पे भी पेनिट्रेट कर सकते हो. सो अक्रॉस इंडिया ये 70% मार्केट शेयर क्यों बना? Why did 70% market share happen? Because they have penetrated through the help of technology. Make sense or not? So I hope I have answered your questions. Any other questions? Anyone? Any questions? So I hope things are clear until now. So ये जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है ये समझनी बहुत जरूरी है. हाउ दे एक्वायर द बिजनेस फ्रॉम द यूजर्स इंटरफेस एंड फ्रॉम द मर्चेंट इंटरफेस. फिर वो स्टिकीनेस कैसे बढ़ाते हैं, एंड देन हाउ दे ऑफर द फाइनेंशियल सर्विसेज. तो अगर एक बार आपने एंट्री ली, देन यू आर एसोसिएटेड विद सो मेनी प्रोडक्ट्स कि अगर आप और यूजर इंटरफेस इतना आपको यूज टू हो जाएगा, यू विल नॉट मूव टू एनी अदर प्लेटफॉर्म. एक बार आप पेटीएम यूज करोगे, फिर आपको गूगल पे यूज करना कंफर्टेबल नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा. यस और नो? सो चलो क्विक पोल लेते हैं. आप में से कितने लोग पेटीएम यूज करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग पेटीएम? ऑन द चैट ऑप्शन क्विकली. Most of you. So how do you find the services of Paytm? चलिए अभी मैं आपको उसकी वेबसाइट पे लेके जाता हूं. यहां तक तो हमने अपॉर्चुनिटी देखा ग्लोबल स्पेस पे, और अभी हम उसकी वेबसाइट पे जाते हैं और फिर उसके मैनेजमेंट और फाइनेंशियल्स की बात करेंगे हम. ऑलराइट, चलिए. सो लेट मी टेक यू टू द प्लेटफॉर्म ऑफ पेटीएम. चलिए. सो ये है paytm.com. देखिए ये दिस इज द पेटीएम वेबसाइट, इंडियाज मोस्ट लव्ड पेमेंट ऐप. तो कुछ लोगों ने यहाँ पे जो रिस्पॉन्सेस दिए हैं, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वो यहाँ पे वो बता रहे हैं. उनको पता है कि आप उनको पसंद करते हो. इंडियाज मोस्ट लव्ड पेमेंट ऐप. ठीक है. तो क्या क्या है देखो. पेटीएम फॉर कंज्यूमर. कंज्यूमर के लिए क्या है? सबसे पहला पेमेंट्स है. पेमेंट्स में क्या क्या चीजें कर सकते हैं? बिल पेमेंट्स, सेंड मनी टू एनीवन, ऑनलाइन पेमेंट्स एंड इन स्टोर पेमेंट्स. ओके. फिर कॉमर्स. तो कॉमर्स में आप शॉपिंग कर सकते हो, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, राइट, मोबाइल, मूवी टिकट्स, फ्लाइट टिकट्स एंड ट्रेन टिकट्स. एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. फाइनेंशियल सर्विसेज में बैंकिंग, मनी,
इंश्योरेंस एंड पोस्टपेड। एक के बाद एक देखते हैं। बिल पेमेंट्स एंड रिचार्जेस पे मैं क्लिक कर रहा हूं, क्या आता है देखते हैं। देखिए कितनी जगह पे आप कर सकते हो पेमेंट, इतनी जगह पे आप पेमेंट कर सकते हो, इतनी सारी जगह पे। ऑलराइट, ऑटो पे रिमाइंडर्स भी देता है, वन टैप पेमेंट देता है। सो दिस इज ऑल पेमेंट्स ऑफ बिल्स एंड रिचार्जेस। सेंड मनी टू एनीवन, उस पे हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है, नो केवाईसी ऑन पेटीएम यूपीआई ट्रांसफर, दिस इज ऑसम। ओके, मेरे घर पे कुक आता है, वो कुक बोलता है सर कैश मत दो पेटीएम करो। ये सुनो और मैं जब भी पेट्रोल भरवाता हूँ, सीएनजी भरवाता हूँ, तो आई ओनली यूज पेटीएम स्कैनर। ओके, दोनों फायदे हैं, आपको कैशबैक मिलता है और आपको कैश कैरी नहीं करना पड़ता है। मेरे पॉकेट में, मैं बहुत ही भिखारी हूँ, 20 रुपए 30 रुपए 50 रुपए ही कैरी करके जाता हूँ, बिकॉज एवरीथिंग इज बीइंग पेड। सो मेरा लाइसेंस भी ऑनलाइन है, मेरा लाइसेंस भी मैं ऑनलाइन दिखाता हूँ। ओके, इन स्टोर पेमेंट्स, क्या है इन स्टोर पेमेंट्स तो कहीं पे भी आप शॉपिंग करने गए हो तो वहां पे ऐसा क्यूआर कोड अवेलेबल होता है, क्यूआर कोड। और ये साउंड क्लाउड है, ये देखिए दिस इज ऑल इन वन साउंड क्लाउड। ओके, तो ये कहीं ना कहीं इसमें से कुछ ना कुछ मिलेगा, तो यहां से आप पे कर सकते हो। देखिए ये मर्चेंट के यहाँ पे आप क्यूआर कोड स्कैन करके पे कर रहे हो, उसका कैशबैक ऑफर होता है। या फिर अगर आप कार्ड दे रहे हो तो कार्ड से भी पेमेंट होता है, राइट। सब्जी वाले के यहाँ, कॉफी वाले के यहाँ, सब जगह ये क्यूआर कोड स्कैनर अवेलेबल होता है। ऑलराइट, सो दैट्स हाउ दिस हैपेंस। ओके, कॉमर्स तो मूवी टिकट्स, ट्रेन टिकट्स, फ्लाइट टिकट। चलो ट्रेन टिकट पे हम क्लिक करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे फ्लाइट, बस, ट्रेन, होटल एंड इंटरनेशनल फ्लाइट, सब जगह आप कर सकते हो। यहाँ कहां से कहां जाना है, से फॉर अहमदाबाद, अहमदाबाद जंक्शन टू न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली कब जाना है, मान लीजिए अक्टूबर और दिसंबर में 10 तारीख को जाना है। सर्च ट्रेन, तो सीधा ही आपको यहाँ से ले जाएगा। तो यू विल यूज इट्स प्लेटफॉर्म टू मेक द टिकट बुकिंग, और उसका कमीशन इसको मिलता है। देखिए ये क्यूआर कोड आ गया, राइट। तो पेटीएम पैसा कैसे कमाता है, यू दे गेट द कमीशन ऑफ दिस। ओके, कमीशन, कॉमर्स में कमीशन मिलता है, मूवी टिकट से कमीशन मिलता है, शॉपिंग करते हो वहां से कमीशन मिलता है, फ्लाइट टिकट से कमीशन मिलता है। इवन फाइनेंशियल सर्विसेज में मैं मनी पे क्लिक करता हूं, लेट मी क्लिक मनी इन फाइनेंशियल सर्विसेज, तो क्या हो गया, ये म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और एनपीएस, ये तीनों प्लेटफॉर्म पे आप यहां से इन्वेस्ट कर सकते हो। कितने यूजर्स हैं, 60 लाख प्लस यूजर्स इन्वेस्ट इन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स। ओके, सो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आप सीधा यहां से क्लिक करके इन्वेस्ट कर सकते हो, इन्वेस्ट नाउ। तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आप यहां इन्वेस्ट करते हो तो दे विल चार्ज यू द कमीशन। ओके, से फॉर एग्जांपल यहां पे मैं ट्राई करता हूं लॉग इन करने का, जहां पे अगर हो जाए तो देन यू विल बी एबल टू सी दिस। सो ओटीपी पूछ रहा है मुझे, लेट मी ट्राई दिस। नाइन टू फाइव सी। सो नाउ यहाँ पे मैंने लॉग इन कर दिया और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, आईपीओ, एनपीएस, सुपर सेवर फंड्स। तो मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, सो इट बिकम सो इजी फॉर यू। ओके, सो इजी फॉर यू। सो म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्ट नाउ। नो इन्वेस्टमेंट्स, रिडम्पशंस, ऑल ट्रांजैक्शंस, मैनेज एसआईपी, अकाउंट स्टेटमेंट, आ गया मेरा पूरा अकाउंट यहाँ पे। आप समझ पा रहे हैं,
सो दिस इज हाउ इजी इट इज. आप ऐप से भी कर सकते हो और ऑनलाइन भी कर सकते हो. क्लियर ऑन दिस? सो पेटीएम मनी इज अ सब्सिडियरी, इट्स अ सेपरेट कंपनी. उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं? म्यूचुअल फंड, स्टॉक, एनपीएस एंड आईपीओ. ऑलराइट. चलिए, तो पेटीएम कंज्यूमर के लिए पता चल गया तीन चीजें, पेमेंट्स, कॉमर्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. हाउ डू दे अर्न? दे अर्न फ्रॉम द कमीशंस एंड द इंटरेस्ट दैट दे चार्ज. ओके. फिर बिजनेस के लिए क्या है? कंज्यूमर पेमेंट्स, पेमेंट्स, बिजनेस सॉफ्टवेयर. सो जो रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी था उसमें बिजनेस खाता, अगर स्मॉल बिजनेस ओनर है उसको उसका बिजनेस अकाउंटिंग मेंटेन करना है तो उसके लिए दे प्रोवाइड द बिजनेस सॉफ्टवेयर. फाइनेंशियल सर्विसेज दे प्रोवाइड टू मर्चेंट्स आल्सो, उनको लोन्स की ज्यादा जरूरत होती है तो दे प्रोवाइड लोन्स एंड बैंकिंग मेजर सर्विसेज, करंट अकाउंट, एम्प्लॉय बेनिफिट्स. ओके. और डेवलपर सर्विसेज भी देते हैं. कंपनी के बारे में और जानना है तो आप इस वेबसाइट पे जाके और कंपनी के बारे में जान सकते हैं. नाउ लेट मी टेक यू टू द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट कौन है? तो ये मैनेजमेंट है. मिस्टर विजय शेखर शर्मा is the managing director and chief executive of the company. So this is a professionally managed company. Okay, इसका कोई एक ओनर नहीं है. It's a professionally managed company. Okay, there are multiple investors and multiple board of directors. How it all started, उसका background यहाँ पे बता रहा है. So Vijay Shekhar Sharma is the one who started this company. Okay, and he is the current MD and CEO of this organization. And he is the chairman of the board. Alright. फिर उसके साथ साथ और कौन कौन है? रविचंद्र इज द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, पल्लवी शार्दुल शॉप इज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, डगलस फेगिन डायरेक्टर. ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके डायरेक्टर्स यहाँ पे हो जाते हैं. ओके. जिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो अपॉइंट करते हैं इन डायरेक्टर्स को. ओके. सो दिस आर द मैनेजमेंट. अभी स्पेसिफिक बिजनेस के भी हेड्स होते हैं. सो हु आर द स्पेसिफिक हेड्स ऑफ द बिजनेस? सो दिस आर द स्पेसिफिक हेड्स ऑफ द बिजनेस. ये देखिए, मधुर देवरा तो वो प्रेसिडेंट एंड ग्रुप सीएफओ है. हरिंदर ठाकर तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर फॉर पेटीएम लेब्स. चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इज विकास गर्ग. रेणु शेट्टी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फॉर ऑफलाइन पेमेंट्स. Sudhanshu Gupta is the Chief Operating Officer for Paytm First Games. CEO for lending is Bhavesh Gupta. Praveen Sharma is Chief Operating Officer, COO for online payments. Technology Officer Manmeet Dhoni. Dipankar Salvankar, President for Compliance and Operations. Amit Khera is Company Secretary and Compliance. जब आप फाइनेंशियल सर्विसेज में हो तो आपको बहुत सारे रेगुलेशंस भी लागू पड़ते हैं. You have to follow the regulations of RBI, SEBI. अगर आप म्यूचुअल फंड ऑफर कर रहे हो तो सेबी के रेगुलेशंस लागू पड़ते हैं. इक्विटी ऑफर कर रहे हो तो सेबी के रेगुलेशंस लागू पड़ते हैं. अगर आप इंश्योरेंस में हो तो आपको IRDA के रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं. सो दिस ऑल compliance work are being managed by this particular compliance officers. All right. So let's talk about the financials of the company. So finally लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी. तो यहाँ पे आप फाइनेंशियल्स में जाओगे, ये फाइनेंशियल्स आएगा, बट लेट मी गिव यू अ ब्रीफ स्नैपशॉट. 2010 में कंपनी शुरू हुई है पर आज भी ये कंपनी लॉस मेकिंग है. आज भी ये कंपनी लॉस मेकिंग है. मैं आपको बताता हूं, देखिए. सो आई विल ओपन द बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. थोड़े राइटिंग छोटे हैं बट देन यू विल हैव टू बेयर विथ मी बिकॉज इसका कोई ऑप्शन नहीं है. This is the balance sheet, consolidated statement of assets and liabilities. तो since it's a service company, इसके assets ज्यादा नहीं है. देखिए, assets लगभग 3000 करोड़ के assets हैं. Okay, it's in millions, तो 3000 million.
ओके 300 करोड़ के एसेट्स हैं, उसमें प्लांट एंड प्रॉपर्टी है लगभग 128 करोड़, गुडविल और ये सब। फाइनेंशियल एसेट्स कितने हैं ये देखिए, सो मेजर एसेट्स इज फाइनेंशियल एसेट्स, देन कम्स अदर फाइनेंशियल एसेट्स 2613 million, investments 341, loans 1258, and current tax assets 3016. ऑलराइट, करंट एसेट्स क्या क्या है? तो सबसे बड़ा है बैलेंस, बैंक बैलेंस एंड कैश इक्विवेलेंट सबसे ज्यादा, और अदर फाइनेंशियल एसेट्स हैं 23,753 मिलियन। ओके, क्योंकि उनका काम ही फाइनेंसिस का है, तो इसीलिए दिस इज मेजर। ओके, शेयर कैपिटल कितना है? 605 करोड़ का। नाउ इमेजिन दिस कंपनी इज गोइंग टू कम अप विथ एन आईपीओ, डेट्स अभी डिसाइडेड नहीं है, पर 16,600 करोड़ का वो आईपीओ लेके आने वाला है, वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ इन द फिनटेक स्पेस। ओके, सो ये उनका इक्विटी कैपिटल है, एंड अदर इक्विटी 64,743 करोड़। तो जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, अलीबाबा ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, देयर आर वेंचर कैपिटल फंड्स हु हैव इन्वेस्टेड इन दिस, दिस ऑल कम्स अंडर अदर इक्विटी। ओके, so this is what the balance sheet looks like, and let's see the liabilities. तो liabilities में contract liabilities 4119 करोड़, borrowings जो है 5449 billion. okay, total outstanding dues, this is the total outstanding dues, other financial liabilities is 5153. okay, so this is what balance sheet looks like. Now let's talk about profit and loss statement. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनफैक्ट घटे हैं, मार्च 2020 में पीक था क्योंकि कोविड सिचुएशन की वजह से इट हैड ग्रोन, बट इट हैज रिड्यूस्ड इन मार्च 2021. देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, कॉम्पिटिटर्स, ये वो फलाना ढिमका, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स. तो अदर इनकम इज 3,844 करोड़. ओके, पेमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस ये एक्सपेंस है उसके 19,168 million. okay, employee benefit expense 11,849 crores, software cloud and data center expense 3,498 crores, marketing and promotion expense. तो अगर इसके एक्सपेंस देखो तो सबसे ज्यादा पेमेंट प्रोसेसिंग एक्सपेंस है, सेकेंड नंबर पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, एंड तीसरे नंबर पे मार्केटिंग एंड प्रमोशन एक्सपेंस है, और अदर एक्सपेंस बताए हैं, पर अदर एक्सपेंस का डिटेल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है. सो इनकम जो है वो 31,000 करोड़ का है, और एक्सपेंस जो है वो 47,000 मिलियन का है, मतलब 4783 करोड़ का है. तो लॉस कितना है इसका? लगभग 1600 करोड़ का लॉस है अभी भी एज ऑन मार्च 2021. सो 2010 में कंपनी शुरू हुई है, स्टिल इट इज लॉस मेकिंग. क्यों लॉस मेकिंग है? टू पेनिट्रेट इन द मार्केट. 70% मार्केट शेयर गेन करने के लिए दे हैव टू मेक द प्रमोशनल एक्सपेंसेस. ओके, दे हैव टू मेक द प्रमोशनल एक्सपेंसेस. सो ये कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है, फिर भी 16,600 करोड़ का आईपीओ लेके आ रही है. सो इट इज अ स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन और हायर वैल्यूएशन. आप बोलोगे इतने हायर वैल्यूएशन पे कंपनी आ रही है तो इन्वेस्ट करना चाहिए. यू हैव टू लुक एट द फ्यूचर ऑफ द कंपनी. ओके, अगले 10 साल में ये कंपनी क्या करने वाली है उसको ध्यान में रखकर आपको इन्वेस्ट करना है. सो इट इज ऑलवेज बैकवर्ड कैलकुलेशंस. ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस लुक्स लाइक. अभी इसके ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सब क्या है, बट द पॉइंट इज इट इज okay, it is loss making still, but the future looks very promising. People don't invest just looking at the loss. उसका मार्केट शेयर भी देखा जाता है, 70% मार्केट शेयर है इसका, और अदर बिजनेसेस में वो पेनेट्रेट कर रहे हैं. अदर बिजनेसेस में पेनेट्रेट करके अगर वो एक सिंपल चार्ज लगाना शुरू कर दे तो वो सीधा प्रॉफिट में आ सकता है. सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच यू नीड टू लुक इनटू व्हेन यू एनालाइज अ कंपनी. सो ये हो गया इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. ऑलराइट, सो क्या सीखा हमने, क्या देखा हमने उसका फाइनेंशियल्स देखा.
नाउ फाइनली कमिंग टू द टेकअवेज ऑफ दिस सेशन, क्या देखा हमने, क्या सीखा, क्या समझा? सबसे पहला हमने देखा व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ फिनटेक स्पेस ग्लोबली। यूके में क्या सिचुएशन है, जर्मनी में क्या सिचुएशन है, फिनटेक किसको बोला जाता है? सो इट इज गोइंग टू डिसरप्ट द ट्रेडिशनल वेज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डूइंग द बिजनेस इन फाइनेंशियल सर्विसेज। ऑलराइट, ग्लोबली हमने सिनेरियो देखा, जीडीपी वर्सेस व्हाट आर द नंबर ऑफ फिनटेक कंपनीज इन दैट, व्हाट इज द सिचुएशन इन इंडिया, इंडिया में इंडस्ट्री का पोटेंशियल क्या है, कितने प्लेयर्स हैं, कितना इन्वेस्टमेंट आया है, क्या साइज है, क्या पोटेंशियल है, ये सब चीजें हमने देखी। फिर उसके बाद हमने पेटीएम का बिजनेस ओवरव्यू देखा, उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी देखी कि बिजनेस में वो कस्टमर कैसे एक्वायर करते हैं पेमेंट सॉल्यूशंस ऑफर करके, एंड देन ऑन द अदर साइड हाउ डू दे एक्वायर द मर्चेंट्स। फिर मर्चेंट्स की स्टिकीनेस बढ़ाने के लिए दे प्रोवाइड द कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज and investment services like financial services, Paytm money, mutual funds, insurance, equity, all these things. Okay, so we have learned the business, and then we learned how it makes money. It makes money through commissions, it makes money through commissions on the payments and remittances in payment. अगर टिकटिंग करते हैं तो उनसे थर्ड पार्टी से मर्चेंट से कमीशन कमाते हैं ये, तो इस हिसाब से इनका रेवेन्यू आता है। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा, सो विजय शेखर शर्मा इज द चेयरमैन, एमडी एंड सीईओ ऑफ दिस, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ 197 कम्युनिकेशंस, और रिसेंटली इसका आईपीओ आ रहा है, डेट्स अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं, 16,600 करोड़ का आईपीओ है। ओके, और उन्होंने, अगर आपको ये पूरा कंपनी डिटेल में स्टडी करना है तो सेबी की वेबसाइट से आप इसका DRHP डाउनलोड कर सकते हो, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हो और उसको आप देख सकते हो। वी हैव आल्सो डिस्कस्ड द फाइनेंशियल्स ऑफ दिस कंपनी। ओके, कैसे रेवेन्यू कमा रही है, उसके एक्सपेंसेस क्या है, लॉस में है, प्रॉफिट में है, बैलेंस शीट का स्टेटस क्या है, ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। So with this, I come to the conclusion of my presentations. अगर आपके कोई questions, queries कुछ भी हैं तो आप पूछ सकते हैं, आप अपने आप को unmute करके भी पूछ सकते हैं, and I will be happy to answer your queries. Any questions from anyone? And I would suggest the host to send across the feedback form if any feedback form is there, and I would request all the participants to participate in the feedback, give your opinion in the feedback. Trial version. 197 Communication is the group parent company of Paytm. It is not listed. Okay, it is not listed. So Paytm का IPO आने वाला है, जब वो IPO आ जाएगा then it will become listed. Okay, any questions further? Somebody was unmute and so next slide. What is next slide? Which next slide you are talking about? This is the final slide. So this is basically the management structure, and these people are respective heads of respective businesses and financial officers. So who is responsible for what? Right? ये पूरा स्ट्रक्चर है कि कौन क्या देखता है इस बिजनेस में, who is the management.
Okay, so participants can go to the website and give their feedback. Skillspire जहाँ से आपने register किया था वहाँ पे जाके you can give your feedbacks. Okay, feedback form यहाँ पे share नहीं किया जाएगा, so you can give your feedback. So I hope the session was fruitful and it has added value to your learning and understanding. And if there are no further questions, we can wrap up the session. Over to you, host. I presume there are no further questions. Should I fill the IPO of Paytm? That is your call, sir. You have understood the business. You have अभी तो price band आया नहीं है. कितना महंगा है, सस्ता है, that we will. उसके बाद तो analyst reports आएंगे. They will try to analyze the company and share with us whether the IPO is overpriced, underpriced. उसके बाद decide होगा. So wait for the price band and dates to be declared. All right. चलिए, so thank you so much for patient listening. I hope it has added the value. Value मिला कि नहीं मिला after attending this session? Quickly on the chat option. Great. चलिए, so I will end the session and I hope stay safe. You take care of yourself. You should stay safe, and we'll see you with another kind of interesting topics. So you can keep visiting Skillspire websites, and you can refer your friends, colleagues to register for this kind of sessions, and it will add value to your learning. Take care of yourselves. Goodbye. Signing off.